عورت کا ریپ اس لیے ہوتا ہے اعلیٰ جیل میں کرپشن کی قید کاٹتا رہے تو میرا خیال میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں. میں اس میں کیا بدتمیزی کی بات کی ہے، کیا بدتمیزی بات کی ہے، کیا بدتمیزی بات کی ہے، ہر ایک کو بولا آرام سے بیٹھو. میری گزارش ملٹری آپریشنز کی بھرپور مذمت. نہیں میڈم مجھے بات کرنے دیں. آج مشال یوسف زئی نے تاریخ رقم کر دی. آرمی چیف کی موجودگی میں طلال چودھری کی ایسی چترول جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. طلال چودھری کا کہنا تھا کہ تم عمران خان کی رکھیل ہو، اپنی زبان کو لگام دو، بس یہ کہنا تھا. پھر مشال یوسف زئی کا پارا ہائی ہو گیا. تم گھٹیا اور ذلیل مریم نواز کے جوتے صاف کرنے والے، اپنی زبان کو لگام دے. مشال یوسف زئی اور طلال چودھری کے درمیان لفظی گولہ باری. سپیکر کو کچھ دیر کے لیے اجلاس ملتوی کرنا پڑا. پورے ایوان میں سناٹا چھا گیا. آرمی چیف اور وزیر اعظم شہباز شریف خاموش. یہ ناظرین پہلے یہ زبردست اور سنسنی خیز ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں. آپ کی محبت اور پیار کا شکر گزار. تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے اور خیبر پختونخوا اس ٹائم جل رہا ہے. پچھلے ایک مہینے سے خیبر پختونخوا میں 30 سے 35 ڈرون اٹیکس ہوئے ہیں. ہمارے سیویلینز شہید ہو رہے ہیں، ہمارے پولیس فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی تیرا آپریشن کی. میں نے بڑی غور سے باتیں سنی، مجھے لگا کوئی سینسیبل بات ہوگی، لیکن جی یہاں پہ تو پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ اس ٹائم کیا ہو رہا ہے. ہماری پارٹی پالیسی ہے. میں ایک بات یہاں اس ایوان میں بہت کلیئر کٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، لیکن ہم ملٹری آپریشنز کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. ہم کیوں اس کی مذمت کرتے ہیں؟ ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس سے ہمارے لوگ در بدر ہو رہے ہیں، اس سے ہمارے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا دہشت گردی کی مد میں بہت بڑی قیمت دہائیوں سے چکا رہا ہے. ایک طرف ہم دہشت گردی کی جنگ میں مارے جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم ملٹری آپریشن میں ہونے والے کولیٹرل ڈیمیج کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں. یہاں پہ بات ہوئی خیبر پختونخوا کے حوالے سے. ہم پچھلے 2 سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، تشکیلیں ہو رہی ہے، نقل و حمل ہو رہی ہے، ایکشن لے. کہا گیا ہم پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آج جب بہت سے علاقوں میں بہت سے لوگ قابض ہو چکے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہاں دہشت گرد نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد ہے. لیکن مجھے بتایا جائے کہ وفاق نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو کتنے ٹائم اپنے ساتھ بٹایا اس دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے. مجھے بتائے کہ ہمیں کتنی مرتبہ بریفنگ دی گئی اس دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے. جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ دہشت گرد آ رہے، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پروپیگنڈا کر رہے تھے. جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ اس جنگ میں قیمت خیبر پختونخوا چکائے گا، اگر آپ سے بات نہیں ہو پا رہی تو ہمیں اپنے ساتھ کریں، آئیں افغانستان سے بات کریں. تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ وفاق کا ڈومین ہے. لیڈر آف دا ہاؤس اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کی یہ بھی گئے ہوئے ہیں افغانستان، یہ گئے اس معاملے میں. جب ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کے جائیں، شاید ہم کوئی حل نکال لیں، تو ہمیں کہا جا رہا تھا کہ یہ آپ کی ڈومین نہیں ہے. اور آج خیبر پختونخوا اس ڈومین کی وجہ سے جل رہا ہے. آپ کہہ رہے تھے تیرا آپریشن، صوبائی حکومت. میں آن دا فلور یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس آپریشن کی اجازت نہیں دی. یہ صوبائی نہیں میڈم مجھے بات کرنے دیں، 7 منٹ بات کی. یہ بہت سیریس معاملہ ہے، میں اتنا ٹائم نہیں لوں گی. یہ بہت سیریس معاملہ ہے، مجھے تھوڑا سا بات کرنے دیں. انہوں نے ہمیں اپنے ساتھ نہیں کیا. پھر وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو مائنس کر کے ایک جرگہ منعقد کیا جس میں قبائل کو لوگ دو اس میں نمائندوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی آپ انخلا کریں. آدھے قبائل کے لوگ نکلے، آدھوں کو زبردستی سے نکالا جا رہا ہے. میڈم بات کر رہے ہیں IDP کے کیمپس کی. کہاں ہیں کیمپس تو ہیں نہیں. ہم تو یہی چیخ رہے ہیں کہ نہ کیمپس ہے نہ کچھ ہے. آپ لوگوں کو در بدر کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کھلے آسمان تلے نکال رہے ہیں. 4-4 5-5
5 दिन लोग तीरा की सलाख पहाड़ों में आप इस पर मोशन मूव कर दें, आप इस पे एक मोशन मूव कर दें, ये अगर आप कह रही हैं। आप मुझे टाइम देंगे इंशाल्लाह कि कौन कौन से ऐसे मंसूबे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बलूचिस्तान में इस वक्त शुरू कर रही है। उसमें बिजली के, उसमें रोड्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेशुमार और प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बलूचिस्तान में जारी हैं। अभी जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया था वो भी कई ऐसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे और वहाँ पे हमारी तमाम जो वज़रा हैं, जो वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो सारे वहाँ मौजूद थे। यहाँ जो वफाकी वज़रा होते हैं वो चूँकि अपनी ज़ाती मसरूफियात मिनिस्ट्रीज़ की होती हैं, इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि तमाम के तमाम मेंबरान, अगर प्राइम मिनिस्टर सिंध जा रहे हैं तो सिंध के सारे वज़रा ट्रैवल करें, बलूचिस्तान जा रहे हैं तो बलूचिस्तान के ट्रैवल करें। तो इन वज़रा की हद तक तो इनकी अपनी मसरूफियात की वजह थी, वरना वहाँ पे सारी टीम, गवर्नर साहब और सारे मौजूद थे। बाकी जो सेनेटर साहिबा ने बात की है, मैं बहुत मुख्तसर अर्ज़ करूँगा कि KP में जो इस वक्त सूरत हाल है टेररिज्म की, इस वक्त KP गवर्नमेंट की एक दोगली पॉलिसी जो है वो देखने में आ रही है, जो दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए वहाँ पे दहशतगर्दों से एक जंग लड़ी जा रही है। ये एक मुंह से ये बात करते हैं कि हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हैं, हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत के साथ हैं, हम रियासत के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी मुंह से या उसी वक्त अगले ही मिनट में ये कहते हैं जनाब के फ़ौजी ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन के हम सीरियन ख़िलाफ़ हैं। तो मुझे फिर आप ये बताएं कि फिर दहशतगर्दों का ख़ात्मा इससे पहले जब पाकिस्तान में हुआ था वो मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ था, क्या उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2009-10 के दौर में शुरू हुआ, IDPs थे, सवात में ऑपरेशन हुए, तो पाकिस्तान में अमन दहशतगर्दों का ख़ात्मा करने के बाद ही मुमकिन हो सका था। आज भी ये वो लोग हैं कि जो आपकी सिविलियन आबादी को निशाना बना रहे हैं, हमारे जवान और अफसरान इसमें अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, वो शहीद हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर आपको पता चलता है कि तश्कीलें अफ़गानिस्तान से आ रही हैं और वो यहाँ पे आके हमला करते हैं, और यहाँ वफाक में अगर हमला होता है, हमारी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर ख़ुदकुश हमला होता है, तो जो हमलावर है वो अफ़गानिस्तान का निकलता है, हैंडलर अफ़गानिस्तान का निकलता है। जहाँ तक आप बातचीत की बात करते हैं तो बातचीत हमने तुर्किया में बैठ के की, इस्तांबुल में की, कतर में की। मकसद यही था कि किसी के दिल में ये शक ना रह जाए कि हम बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से इस मसले को हल नहीं करना चाहते। लेकिन वहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जो अफ़गान तालिबान रजीम के नुमाइंदे हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन हम उसे रोक नहीं सकते। उन्होंने इनकार नहीं किया कि दरअंदाजी नहीं होती और तश्कीलें वहाँ से नहीं आती, बातचीत का रास्ता अपनाया गया, लेकिन वो तहरीरी मुआहदा उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। लिहाजा आज हमें उन फैमिलीज़ के साथ खड़ा होना है जिनके बच्चे वतन के लिए वहाँ पे अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, और दोहरा मेयार जो इस वक्त वहाँ पे KP की हुकूमत है उसे ख़त्म करना होगा। उसे या रियासत के साथ खड़ा होना है, या दहशतगर्दों के साथ, या उनके खिलाफ खड़ा होना है, या उनके साथ खड़ा होना है। शुक्रिया मिनिस्टर यस और नो में ये पॉलिसी आपको देनी पड़ेगी। हम दहशतगर्दी के भी खिलाफ हैं, दहशतगर्दों के भी खिलाफ हैं, ऑपरेशन के भी खिलाफ हैं। ये क्या दोहरा मेयार है? वाज़े हो गया। थैंक यू वेरी मच जी। नाउ ऑर्डर नंबर, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जो मौजूदा निज़ाम है या जो मौजूदा रजीम चेंज है, ये वोट के ज़रिए आया है या धांधली के ज़रिए आया? पाकिस्तान में इमरान खान को क्या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, या उनके ऊपर जो केस बनाए गए वो मेरिट पे हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय ही हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया। औरत का रेप इसलिए होता है क्योंकि औरतें मुनासिब कपड़े नहीं पहनती, और तालिबान वाला जो मामला है वो कोई ना कौमी मुफाद में उनकी सोच है, ना आलमी अमन के लिए। वो एक सियासी फैसला, उन्होंने उनकी हमायत अपनी सियासी अपनी जमात को सियासी ताकत देने के लिए करते हैं। कभी उनके दफ्तर खोल दें, कभी उनको वहां से लाकर इधर आजाद कर दें। और अगर कोई ऐसा चांसलर चाहता है कि किसी रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी का चांसलर जो है वो जितनी देर के लिए चांसलर बने उससे ज्यादा देर वो डयाला जेल में करप्शन की कैद काटता रहे, तो मेरा ख्याल, मेरी गुजारिश, मैं आखिरी नहीं, एक सेकंड, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। मैं इसमें क्या बदतमीजी की बात की है, क्या बदतमीजी बात की है, क्या बदतमीजी बात की है? हर एक को बोलो, आराम से बैठो,
मेरी गुजारिश बदतमीजी की है इसे, तलाल बदतमीजी की है, हर एक में तलाल साहब तुम्हें आराम से बैठो। जी नाज़रीन कराम, आपने वफाकी वज़ीर तलाल चौधरी और मशाल यूसुफ ज़ई की तकरीर सुनी। नाज़रीन, मशाल यूसुफ ज़ई ने तलाल चौधरी पर तनकीद की और तलाल चौधरी ने PTI के ऊपर तनकीद की। नाज़रीन, सेनेट में यानी कि PTI के लोगों ने काफ़ी एहतजाज किया जब उन्होंने इमरान ख़ान और अडियाला जेल का नाम लिया, तो फिर PTI के लोग जो है अपनी नशिस्तों पर उठकर खड़े हो गए और उन्होंने तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ काफ़ी एहतजाज रिकॉर्ड कराया और कुछ देर के लिए यानी कि इजलास को मुलतवी भी करना पड़ा। और मशाल यूसुफ ज़ई ने जो तकरीर की है नाज़रीन, वो भी हकीकत पर मबनी है, मगर दोनों ही हमारे लिए काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम है और दोनों को चाहिए कि वो इखलाक के दायरे में रहकर गुफ्तगू करें। तलाल चौधरी किसी भी टॉक शो में जाते हैं या किसी भी पार्लियामेंट में जब इजलास में ये तकरीर करते हैं तो ये गैर इखलाकी बातें करते हैं जो कि किसी भी सियासतदान को ज़ेब नहीं देती। हमेशा तनकीद इखलाक के दायरे में भी रहकर की जा सकती है और सियासत इखलाक के दायरे में रहकर की जा सकती है। नाज़रीन, ये बात आया है कि पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख में जितने भी इलेक्शन हुए वो मुतनाज़ा ये इलेक्शन हुए, हर हारने वाली जमात कहती है कि धांधली हुई और हर जीतने वाली जमात यही कहती है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ थे। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के सियासतदान हैं ये सब भी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ कर आए हैं और सब ही यानी कि सबको ही ताकतवर इदारे लेकर आए हैं, क्योंकि ये जमहूरियत को ख़ुद कमज़ोर करते हैं और बाद में ये फ़ौज पर बिला वजह तनकीद करते हैं। क्योंकि आप लोग जब आइन और कानून ऐसे पास कराओगे जिसकी वजह से जमहूरियत कमज़ोर होगी और आमरीत मजबूत होगी, जैसे 26वीं आनी तरमीम और 27वीं आनी तरमीम इन्होंने पास करवाई, नाज़रीन ये जमहूरियत को कमज़ोर किया, इन्होंने सियासतदानों ने अपने आप को ख़ुद कमज़ोर किया है और ताकतवर इदारों को इन्होंने और ताकतवर किया है। फिर ये बाद में जब अपोजिशन में आते हैं यही कानून इनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ये फ़ौज को यानी कि निशाने पर रखते हैं और अपनी गंदी सियासत के लिए फौज को नाम लेते हैं, क्योंकि वो जो कि गलत है। क्योंकि अब ये सोए हुए हैं, जब इनको हुकूमत दी जाती है तो ये फौज भी अच्छी हो जाती है और जर्नैल भी अच्छे हो जाते हैं। जैसा कि आपको नाजरीन पता है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है वो अरूज पर है, गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकती और जो बंदा 1000 रुपये दिहाड़ी लेता है उसका घर का निज़ाम चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। पाकिस्तान में आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें आसमान को छूने लगी हैं और पाकिस्तान में जो एक नया केस आया है कि एक खातून पकड़ी गई हैं और वो नशा बनाती भी थी और बेचती भी थी और उससे काफ़ी हमारे पाकिस्तान के एक्टर और सियासतदान उससे ख़रीदते भी थे और यानी कि सिंध के काफ़ी ऐसे थाने थे जो कि मिले हुए थे। ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है। जब पुलिस वाले तनख्वाह लेते हैं या हमारे जितने भी सरकारी मुलाजिम तनख्वाह लेते हैं तो उनको चाहिए कि वो रिश्वत ना लें, वो पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान में से यानी कि नशे की लानत को हमें हमेशा के लिए ख़त्म करना है, क्योंकि नशा जो है वो आज अगर किसी की औलाद है तो कल को हमारी औलाद भी उसी जद में आ सकती है। वाह नाजरीन के प्यारे पाकिस्तान को अल्लाह ताला वो अरूज दे जिसका ख्वाब कैद आज़म ने देखा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।